Difference between intranet and internet. The internet and intranet are both networks used for communication and information sharing, but they serve different purpose. The internet is a global network accessible to the internet is a global network accessible to everyone, while the intranet is a private network restricted to a specific organization. यूज़ देखते हैं, ये पब्लिक है और इंट्रानेट जो है वो प्राइवेट है. यूज़र टाइप एनी यूज़र हैविंग डायल-अप ऑफ इंटरनेट एक्सेस लाइन. ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ एंड इंटरनल कंपनी डिपार्टमेंट uses access all kind of information, internet, employee communication and telephone directories. Security, low security, configured under a zero security level of firewall. High security, configured under 100 security level in firewall. Regulated by Internet Architecture Board, oversees the technical and engineering development of IETF and IRTF, Internet Corporation for Assisted Names and Numbers. It is regulated by organization. Coverage wide area within an organization. Access large number of user, limited number of user. System failure unpredictable. System available in is high since system is monitored by authority. अब देखते हैं डेफिनेशन. इंटरनेट अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड. इंट्रानेट अ प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क यूज्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशन. एक्सेस ओपन टू एवरीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन, restricted to authorized user within organization. Uses public, anyone can access it. Private, only employees or organized person. अब आते हैं सिक्योरिटी. लेस सिक्योर ड्यू टू पब्लिक एक्सेस एंड साइबर थ्रेट्स. हाई सिक्योर विद फायरवॉल एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस. पर्पस शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड इंटरटेनमेंट ETC. पर्पस क्या है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट ETC. इंटरनल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट. एग्जाम्पल गूगल, फेसबुक. गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, विकीपीडिया, अमेजॉन ETC. इंटरनल कंपनी पोर्टल्स, HR मैनेजमेंट सिस्टम, corporate knowledge base ETC. Data control controlled by multiple entities including government service providers, controlled by single organization or company. Connectivity required an internet connection and service provider, operated within a local area network or VPN. Speed depends on bandwidth and traffic congestion. IPS generally faster since it operates on private network. Uses used for global communication, web browsing and online transaction. Used for secure file sharing. Internet used for secure file sharing, internet meeting and collaboration within an organization. Conclusion. While the internet connects the world by providing vast information and communication possibilities, the intranet ensures secure private communication within organization but has limited access. Both play a crucial role in today's digital world. Impact of internet on human life. Impact of internet on kids. देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उनके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, उन्हें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? एडिक्शन, साइबर बुलिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क, एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट. अब आते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड ह्यूमन लाइफ. देखो कम्युनिकेशन.
इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू ईमेल, मैसेजिंग एंड वॉइस कॉल्स। ठीक है, आप किसी को बात कर सकते हो। एग्जाम्पल है व्हाट्सअप, जूम कॉल और जीमेल। अब आते हैं एजुकेशन। एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल लाइब्रेरीज भाई साहब, और वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, खान अकेडमी, एनसीईआरटी, ई बुक। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट एंड होम डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट एंड होम डिलीवरी सर्विसेज देखें जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यूपीआई ट्रांजैक्शन। एम्प्लॉयमेंट, रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। एम्प्लॉयमेंट क्या है? रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब, अपवर्क, फिवर। ठीक है। हेल्थ केयर, टेलीमेडिसन, ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड एक्सेस टू मेडिकल रिसर्च जैसे प्रेक्टो हो गया, एआई इनेबल डायग्नोसिस, ऑनलाइन हेल्थ पोर्टल। बैंकिंग एंड फाइनेंस, सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे नेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे। इंटरटेनमेंट, स्ट्रीमिंग सर्विसेज फॉर म्यूज़िक हो गया, मूवी, गेमिंग जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और स्पॉटिफाई। सोशल अवेयरनेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल एंड सोशल इशू जैसे ऑनलाइन कैंपेनिंग हो गया, सोशल मीडिया एक्टिविज़म हो गया। ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज, इजी एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, टैक्स फिलिंग, पब्लिक सर्विसेज, टैक्स फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जैसे डिजिटल इंडिया, आधार, ई सर्विस, ई गवर्नेंस। रिसर्च एंड इनोवेशन, फास्टर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एआई डेवलपमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स। तो अब हम देखते हैं, कम्युनिकेशन बढ़िया कर दी, एजुकेशन में हेल्प कर रहा है, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, हेल्थ केयर में वो कर रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, इंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया चीज़ें, सोशल अवेयरनेस हो रहा है, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे डिजिटल इंडिया, आधार, ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस, रिसर्च एंड इनोवेशन, एआई डेवलपमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। आते हैं हम नेगेटिव इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं। सबसे पहले प्राइवेसी इशू, डेटा ब्रीच, साइबर थ्रेफ्ट एंड डेटा ब्रीच हो रहा है, साइबर थेफ्ट हो रहा है, सर्विलांस थ्रेटनिंग पर्सनल प्राइवेसी जैसे हो गया फेसबुक, डेटा लीक, हैकिंग केस। ठीक है। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, देखो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, फिशिंग स्कैम हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हैज़ इंक्रीज जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, रैंसमवेयर अटैक हो गया। मेंटल हेल्थ इशू, एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, गेमिंग डिसऑर्डर। फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, स्प्रेड ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन मिसलीड्स पीपल एंड क्रिएट्स पैनिक जैसे कोविड-19 र्यूमर्स, डीप फेक वीडियो। मतलब साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी हो गई, साइबर सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ, फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, अब है सोशल आइसोलेशन। ओवर यूज़ ऑफ इंटरनेट reduces face to face interaction and weakening relationship. People prefer virtual interaction over real time meetings. Cyberbullying, online harassment and trolling cause psychological distress जैसे teen cyberbullying case, social media abuse. Job displacement, automation and AI reduce traditional job opportunity जैसे machines replaces workers in industries. हेल्थ इश्यूज़ में लॉन्ग स्क्रीन टाइम लीड टू आई स्ट्रेन, ओबेसिटी एंड स्लीप डिसऑर्डर. डिजिटल आई स्ट्रेन, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी. हार्मफुल कंटेंट, एक्सपोजर टू वायलेंट, इनअप्रोप्रिएट एंड एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट अफेक्ट मेंटल वेलबींग जैसे डार्क वेब, वायलेंट वीडियो, गेम एंड रेडिकलाइजेशन. फिर उसके बाद है डिजिटल डिवाइड. अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट क्रिएट्स अ गैप बिटवीन urban and rural areas.
लैक ऑफ इंटरनेट इन रिमोट विलेजेस, एजुकेशन इनइक्वालिटी। कंक्लूजन देखो, while the internet has brought immense benefit, its negative impact such as privacy concern, mental health issues, cyber crimes cannot be ignored. Responsible and mindful use is essential to maximize its advantages while minimizing the risk. तो समझ रहे हो, प्राइवेसी, साइबर क्राइम, मेंटल हेल्थ हो गया, फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, सोशल आइसोलेशन, साइबर बुलिंग, जॉब डिस्प्लेसमेंट, हेल्थ इशू, हार्मफुल कंटेंट दिखा रहे हैं ये लोग, और डिजिटल डिवाइड। अब आते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। कंप्यूटर हैज़ ट्रांसफॉर्म मॉडर्न सोसाइटी बाय एनहांसिंग एफिशिएंसी, connectivity and automation. They play a crucial role in various sectors such as education, healthcare, governance and business. However, their over-dependence has led to security risk, job displacement and privacy concern. Computer, role of computer. Computer has transformed modern society by enhancing efficiency, connectivity and automation. Computer transformed modern society by enhancing efficiency, connectivity and ECA. इसमें क्या है? ECA, efficiency, connectivity and automation. They play a crucial role in various sectors such as education, healthcare, governance, business. However, their over-dependence has led to security risk, job displacement and privacy concern. Positive and negative aspect of computer. Positive impact example, negative impact example. जैसे एजुकेशन में देखो, जैसे डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक, जैसे स्मार्ट क्लासेस, बायजूस, कोर्सेरा। ठीक है। नेगेटिव क्या है? reduced attention span due to excessive reduced attention span, जैसे ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन, गेमिंग एडिक्शन। हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन, AI बेस्ड डायग्नोसिस एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, AI इन मेडिकल इमेजिंग प्रेक्टो। ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी कैन लीड टू मिस डायग्नोसिस, जैसे एरर इन ऑटोमेटिक डायग्नोसिस। बिजनेस एंड इकोनॉमी, फास्टर ट्रांजेक्शन्स, ऑटोमेशन एंड डिजिटल बैंकिंग। इसमें क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, स्टॉक ट्रेडिंग। साइबर फ्रॉड एंड हाईजैकिंग रिस्क, जैसे इसमें क्या हो रहा है? डेटा ब्रीच हो रहा है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कम्युनिकेशन, इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी बाई ईमेल, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप, जूम। साइबर बुलिंग, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। ठीक है। इससे सोशल मीडिया मैनिपुलेशन या डीप फेक वगैरह हो रहा है। ठीक है। अब कहते हैं गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, डिजिटल गवर्नेंस, ई सर्विसेज एंड एफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आधार हो गया, ई गवर्नेंस पोर्टल हो गया। रिस्क ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड ब्रीच, government surveillance concern, employment, create a new job opportunity in IT and automation, AI engineers, data analyst. यहाँ job displacement due to automation and AI, layoff in manufacturing industries. Cyber security and defense, cyber security advancement and digital services, AI based security system, rise in cyber crimes and ethical concern, जैसे हैकिंग हो गया, रैंसमवेयर अटैक। मतलब देखो, वही चीज़ कह रहे हैं। अब हम आते हैं इसमें और देख लो। पहले इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, गेमिंग एंड डिजिटल मीडिया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब, ऑनलाइन गेमिंग। इससे एडिक्शन हो रहा है, एडिक्शन टू डिजिटल इंटरटेनमेंट, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, बिंज वॉचिंग, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। रिसर्च एंड इनोवेशन, एक्सेलरेट रिसर्च डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, AI रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ethical concern, AI and lose of human control, deep fake,
waste AI decisions. Environment is impact. Paperless transaction and digital processes reduce deforestation. इसमें देखो ई बुक, डिजिटल बैंकिंग, ये सब आ रहा है. ई वेस्ट जनरेशन एंड हाई एनर्जी कंजम्पशन. टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स. ठीक है. कंक्लूजन्स देखो. Computer have become indispensable in modern society. Computer have become indispensable in modern society, driving process in various fields. However, their misuse and over dependence pose challenges that required ethical consideration, regulation, and responsible use. A balanced approach can ensure that technology serve humanity positively without compromising security, employment, and mental well-being. ठीक है. बिहार स्टेट एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है. क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ठीक है. अब बिहार क्या कर रहे हैं? बिहार से स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. ओ शिट. Bihar State Action Plan for Climate Change aligned with National Action Plan for Climate Change. ठीक है. तो जो बिहार स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2025 में आया, अलाइन विद इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, एनर्जी एंड क्लाइमेट नॉलेज. ये क्या कर रहा है? फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, एनर्जी एंड क्लाइमेट नॉलेज. डिस्पाइट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन remains slow. The state is highly vulnerable with 14 of India's 50 मोस्ट क्लाइमेट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, 50 डिस्ट्रिक्ट्स में से 14 केवल बिहार में हैं. टू एनहांस रिजिलियंस, बिहार पार्टनर विद यूएनयूपी इन 2021 फॉर लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइज्ड बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव टू प्रमोट क्लाइमेट गवर्नेंस, फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़. तो ये कॉन्क्लेव हुआ क्या? बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव. बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव टू प्रमोट क्लाइमेट गवर्नेंस, फाइनेंस, क्लाइमेट गवर्नेंस हो गया, फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी. एडिशनली द स्टेट लॉन्च द SPACCHS एड्रेसिंग क्लाइमेट लिंक्ड हेल्थ रिस्क. जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो हेल्थ रिस्क एंड सस्टेनेबल हेल्थ केयर. ठीक है. तो देखो, हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है. हम देख रहे हैं ना कि मतलब बिहार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए बिहार ने यूएनईपी से मतलब एक कोलैबोरेशन किया. बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव बुलाया कि वहाँ पे लोग स्ट्रेटजी वगैरह बता दें हमें. फिर उसके अलावा क्या किया कि हेल्थ को भी वो किया, ऐड किया. ठीक है. वाइल बिहार हैज़ फॉर्मुलेटेड स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट पॉलिसीज़, effective execution remains a crucial to building resilience and mitigating climate risk. Framework and alignment. देखो, reference framework based on National Action Plan on Climate Change formulated in 2008. Core tenets क्या है? emphasizes sustainable development, societal co-benefit, सबका बेनिफिट हो, एंड adaptation and mitigation and scientific research. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सोसाइटल को बेनिफिट हो गया, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन हो गया, एंड साइंटिफिक रिसर्च हो गई. ठीक है. अलाइन मैच द फोकस एरिया मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटाट हो गया, एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है. अब आते हैं क्लाइमेट चेंज के पॉसिबल एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है. एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं? देखो,
क्लाइमेट चेंज से एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन वेजिटेशन, वनरेबल ऑन कम्युनिटी, अर्बन सेटलमेंट्स एंड एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पॉसिबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती हैं? नेचर बेस्ड सोल्यूशन हो सकते हैं, एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स हो सकती है, पॉलिसी अलाइनमेंट करना है एंड अर्बन प्लानिंग करनी है। पॉलिसी अलाइनमेंट करना है, एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स हो सकती है, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। अच्छा, ठीक है। आ सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन समराइजेस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पॉसिबल स्ट्रेटजी टू अचीव द सेलेक्टेड सस्टेनेबल गोल, ठीक है। फॉर्मुलेशन प्रोसेस, सबसे पहले कंसल्टेशन प्रोसेस होगी। कंसल्टेशन प्रोसेस, यूएनडीपी कंसल्ट्स इंगेज्ड बाय, यूएनडीपी नहीं यूएनईपी का होगा ना, कंसल्टेड engaged by Ministry of Environment, Science and Climate Change, assisted in drafting from 2011 एंड टू फाइनल वर्जन आया इनका जनवरी 2015 में, ठीक है। वर्कशॉप एंड इनपुट इन्वॉल्व सेवरल राउंड्स ऑफ इंटरेक्शन विद नोडल ऑफिसर टू फोकस सेक्टर डिपार्टमेंट एंड रेफरेंस टू स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज डॉक्यूमेंट ऑफ अदर स्टेट। मतलब वर्कशॉप एंड इनपुट, देखो अप्रोच एंड स्ट्रेटजी। सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ रिस्क, फोकस ऑन रिड्यूसिंग एक्सपोजर, हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, एनहांस कैपेबिलिटी फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम। देखो आप रिस्क को रिड्यूस करिए सबसे पहले, रिड्यूसिंग एक्सपोजर, हजार्ड्स एंड vulnerability, preparedness and response, enhance capacity for timely and effective response system, capacity building, augmenting ability to cope with unforeseen events and pooling and sharing the risk, ठीक है। augmented ability to coping with unforeseen events and pooling and sharing the risk, knowledge base, establishing local level climate vulnerabilities and risk analysis। अच्छा, नॉलेज बेस क्या है? इस्टेब्लिश करो आप लोकल लेवल क्लाइमेट वनरेबिलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंट पीपल्स परसेप्शन, इंटीग्रेट मेजर, इनकॉर्पोरेट पॉवर्टी, लाइवलीहुड इक्वलिटी इशू विद ए फोकस ऑन रिड्यूसिंग जेंडर एंड इंट्रा स्टेट इनइक्वलिटीज़। देखो रिड्यूस रिस्क करो, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स दो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, नॉलेज बेस प्रिपेयर करो, मैपिंग करो कि लोकल वनरेबिलिटी क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटिव मेजर्स, इनकॉर्पोरेट करो पॉवर्टी, लाइवलीहुड इक्वलिटी इशू। रिस्क को रिजर्व करना है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है और रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना है। कैपेसिटी बिल्डिंग कराओ, नॉलेज बेस तैयार करो, इंटीग्रेटिव मेजर्स लो। इंगेजमेंट एंड कोलेबरेशन, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, इंगेजिंग सिविल सोसाइटी, इंगेजमेंट एंड कोलेबरेशन। सबसे पहला है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, इंगेजिंग सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल सपोर्ट एजेंसी। किस किस को? सिविल सोसाइटी को, प्राइवेट सेक्टर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एंड इंटरनेशनल सपोर्ट एजेंसीज को। रिसोर्स पूलिंग, कंबाइनिंग रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज फॉर अप स्किलिंग क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रेटजिक मेजर्स एंड इंटरवेंशन, जैसे फोकस सेक्टर होना चाहिए एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन, वेटलैंड प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटीग्रेटेड अप्रोच, REDD+ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना है, वाटर को एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन कराना है, वेटलैंड को प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी इंटीग्रेटेड अप्रोच, REDD+ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कराना है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंटीग्रेटिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन, अर्बन डेवलपमेंट कराना है, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करानी है, ओके। एनर्जी प्रमोट क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स,
industry and mining, sustainable practice and mitigation measures, government initiatives, state steering committee, देखो सेंट्रल ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन, नोडल डिपार्टमेंट एंड एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, स्टीयरिंग कमेटी, सेंट्रल ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन, एक स्टीयरिंग तो देख रही है, सेंट्रल ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन, नोडल डिपार्टमेंट एंड एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज सेल एंड यूनिट, established a focus sector department and district level formation, क्लाइमेट चेंज की गवर्नमेंट के एंड इंस्टीट्यूशन, देखो स्टेट पे सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी बना दी, नोडल डिपार्ट सबसे पहले स्टेट आई तो स्टीयरिंग कमेटी बना दी, फिर डिपार्टमेंट, सो नोडल डिपार्टमेंट एंड एजेंसी, फिर क्लाइमेट चेंज सेल्स एंड यूनिट, ओके, फिर विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेशनल रीच एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, पूलिंग नॉलेज रिसोर्स ऑन इम्पैक्ट वनरेबिलिटी एंड एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, ठीक है, स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, फिर उसके बाद है एडवाइजरी पैनल, इंक्लूड्स सिविल सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर फॉर ऑपरेशनल सपोर्ट, बिहार स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एम टू इंटीग्रेट क्लाइमेट रेजिलियंस इनटू स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर, ठीक है, it emphasizes the need for sustainable practice, community involvement and effective governance to address the challenges posed by climate change. By implementing these strategies, Bihar aims to enhance its adaptability capacity and ensure sustainable development in face of changing climate. आते हैं बिहार एंड सोलर एनर्जी। Introduction. Bihar, with vast agricultural landscape and rural expanse, present a significant opportunity for adoption of solar energy. अच्छा, the state's socio-economic development is closely tied with the rural economy, and leveraging solar energy can catalyze sustainable growth. Despite its high potential, Bihar faces challenges in fully harnessing solar energy. सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। जियोग्राफिकल एडवांटेज, बिहार रिसीव करता है एवरेज सोलर रेडिएशन कितना 4.5 से 5.5 किलोवाट पर मीटर पर डे, मेकिंग इट सुटेबल फॉर सोलर पावर जनरेशन। अच्छा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ओवर 88.7% बिहार पॉपुलेशन जो है रिसाइड्स करती है इन रूरल एरिया। सोलर एनर्जी कैन प्ले ए पिवटल रोल इन इंश्योरिंग रिलायबल एंड सस्टेनेबल electricity supply to these region. Agriculture sector, solar powered irrigation system can reduce dependency on conventional energy source, thereby supporting agriculture economy. The use of solar pump can be mitigate the impact of erratic power supply. Current status और इनिशिएटिव देखो, एज ऑफ 2022 बिहार इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी स्टैंड टू अप्रॉक्सीमेटली 220 मेगावाट विद सिग्निफिकेंट स्कोप फॉर एक्सपेंशन गिवन द स्टेट पोटेंशियल। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखो, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार हैज़ been instrumental in promoting solar energy project including installation of solar street light, solar home system and rooftop solar panels, ठीक है। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, एम टू इंस्टॉल सोलर स्ट्रीट लाइट अक्रॉस रूरल एरिया टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड एनर्जी एक्सेस। सोलर पंप प्रोग्राम, प्रोवाइड सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, मतलब 3 हो गई। देखो, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो गई, ठीक है। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, सोलर पंप प्रोग्राम, प्रोवाइड सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पॉलिसी, बिहार स्टेट सोलर पॉलिसी 2027 एम टू अचीव
ए सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट 2020 तक। ओ भाई अभी तो हुई नहीं है। 3000। बिहार स्टेट सोलर पॉलिसी 2027 एम टू अचीव अ सोलर कैपेसिटी ऑफ 3000 मेगावाट बाई 2022। द पॉलिसी प्रोवाइड incentives such as capital subsidy, tax exemption and facilitation of land acquisition for solar project। कैपिटल सब्सिडी हो गई, टैक्स एग्जम्पशंस एंड फैसिलिटेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन। ओके, चैलेंजेस क्या है? इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंट वेरियर particularly for small and marginal farmers। Land acquisition, availability of land for large scale solar project is a challenge due to high population density and fragmented land holding। Technological and financial support, limited access to technology, know-how and financial resources hamper the widespread adoption of solar technology। Case study, solar mini grid in Bihar। देखो, देसी पावर प्रोजेक्ट इन अररिया डिस्ट्रिक्ट। देखो क्या है, सोलर मिनी ग्रिड इन बिहार, मतलब मिनी ग्रिड बना दी है, सोलर के लिए मिनी ग्रिड बना दी है किसने? बिहार में। देसी पावर प्रोजेक्ट इन अररिया डिस्ट्रिक्ट एग्जेम्प्लीफाई द पोटेंशियल ऑफ सोलर मिनी ग्रिड इन रूरल बिहार। दिस प्रोजेक्ट हैज़ सक्सेसफुली प्रोवाइडेड reliable electricity to several villages, supporting local business, schools and healthcare centers। The initiative highlights how decentralized solar power can transform rural communities by enhancing energy security and fostering economic development। मतलब देसी पावर प्रोजेक्ट, सोलर मिनी ग्रिड इन बिहार। कंक्लूजन, harnessing solar energy in Bihar is not just an environmental imperative but also a socio-economic opportunity। By addressing the challenges and leveraging the state's solar potential, Bihar can achieve sustainable development and energy security। The government proactive policies and initiatives need to complemented बाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट जो कर रही है उसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन बिहार। चलो अब देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। India's space journey is a testament to how perseverance and innovation can overcome any obstacle। A.S. Kiran Kumar। In August 1969, Indian Space Research Organization was founded to replace Indian National Committee for Space Research under the Department of Space। The Indian Space Research Organization has achieved numerous milestones since its establishment। Here is some significant achievement of ISRO along with example। सबसे पहला है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान। ये जो है इसरो ने अचीव किया था 5 नवंबर 2013 को। एग्जाम्पल, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली रीच मार्च ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फोर्थ स्पेस एजेंसी ग्लोबली टू रीच मार्स। इट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल डेटा अबाउट मार्टिन सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आते हैं चंद्रयान मिशन पे। इसरोज चंद्रयान मिशन हैव एडवांस लूनर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च हुआ था इन 2008। कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन मून। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ 2019 में, एम टू एक्सप्लोर द मून्स साउथ पोल विद एन ऑर्बिटल लैंडर एंड रोवर। आदित्य L1। द आदित्य L1 मिशन बाय इसरो एम टू स्टडी द सन कोरोना solar wind and solar flare for strategic vantage point at Lagrange point 1, enhancing our understanding of solar dynamics and space weather। ठीक है, गगनयान मिशन अपकमिंग है अचीवमेंट। इसरो ambitious project to send Indian astronaut to space। एग्जाम्पल, planned for 2023
Gaganyaan mission will make India the fourth country to independently send human to space, enhance India's human space flight capability. Satellite launch vehicle achievement, development of reliable, cost-effective satellite launch vehicle. Example है polar satellite launch vehicle has launched numerous satellites, including record-breaking launch of 104 satellite in single mission in फरवरी 2017. Navik navigation with Indian constellation achievement, establishing an autonomous satellite navigation system. Example, Navik provides accurate position information services to user in India and surrounding region, enhancing navigation and timely services. अब आते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डेवलपमेंट ऑफ GSLV सीरीज टू लॉन्च हैवियर पेलोड इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. जैसे GSLV मेक 3 सक्सेसफुली लॉन्च्ड द GSAT-19 सैटेलाइट इन जून 2017, शोकेसिंग इसरोज कैपेबिलिटी टू लॉन्च हेवियर सैटेलाइट्स. कमर्शियल लॉन्च व्हीकल, इसरोज कमर्शियल आर्म जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन एंड लेटर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड have positioned India as a competitive player in global satellite market. Example, the launch of foreign satellite for various countries, including record launch of 104 satellites in single mission. ठीक है, देखो अभी ये क्या है इसरो. सबसे पहले आप देखो 19 अप्रैल 1975 इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ. ठीक है, उसके बाद 19 जून 1981 इसरोज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल लॉन्च हुआ. पहले आर्यभट्ट फिर एप्पल. फिर 1992 में फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इनसेट सीरीज इनसेट 2A लॉन्च हुआ. 1993 में फर्स्ट डेवलपमेंट लॉन्च ऑफ PSLV. GSLV प्लेस्ड GSAT-1 सैटेलाइट इन ऑर्बिट 2001 में. फिर चंद्रयान 1 भेजा गया 2008 में. 2013 में हुआ मार्स ऑर्बिटल मिशन. फिर मॉम इंटर द मार्स 14 में मॉम मार्स के उस पर घुस गया. इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन एस्ट्रोसेट लॉन्च 2015 में. ठीक है, फिर उसके बाद 17 में PSLV C-37 कैरिड 104 सैटेलाइट ऑन ए सिंगल मिशन, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ठीक है, PSLV C-37 GSAT-29 हैवियर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फ्रॉम इंडिया. ठीक है, फिर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ. चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेसफुल ऑर्बिटल प्लेस्ड लूनर पोलर ऑर्बिट. अब आते हैं स्पेस एप्लीकेशन अचीवमेंट. देखो, यूटिलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट. इसरोज सैटेलाइट सपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग मेट्रियोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड significantly contributing to India's socio-economic development. एस्ट्रोसेट अचीविंग, देखो लॉन्चिंग इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी. एस्ट्रोसॉट लॉन्च हुआ 2015 में. हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन स्टडीइंग celestial resources in different wavelength, providing valuable data for astronomical research, innovation and cost effectiveness. Mars orbital mission Mangalyaan was completed with a budget of approximately 74 million, making it one of the most cost effective interplanetary mission. Aditya L1, देखो Aditya L1 mission by ISRO aim to study the sun corona, solar wind and solar flare from a strategic vantage point at Lagrange point 1, enhancing our understanding of solar dynamics and space weather. ISRO achievement reflects its growing capabilities in space exploration, satellite technology and space applications, significantly contributing to space research and national development. अब देखो जरा फिर से देखो, मॉम किया, चंद्रयान मिशन के बारे में लिखना है, फिर गगनयान में, फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर नाविक के बारे में लिखना है, फिर GSLV के बारे में लिखना है, कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज दे रहा है, स्पेस में एप्लीकेशन, एस्ट्रोसेट हो गया, इनोवेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फिर आदित्य L1 के बारे में लिखना है.